studying in 9th standard. So actually I'm having the craze of and flame of taking the UPSC. I'm truly indebted to the authority members of Quintessence classes for providing me such an outstanding opportunity to present myself in front of you people. So where in Instagram and other social networking sites I got connected towards them, and Mr. Tahlil Sir, he inspired me a lot through lectures, and even though I haven't met him, but through his lectures and through his most inspirational and motivational videos, I have got the flame in my mind that I have to crack it. No matter for no fame, for no money, but I have to represent my Kashmir and I have to represent my family. Coming across many hardships and coming across many... On 5th of July, Quintessence conducted a workshop for civil services aspirants. The workshop was attended by UPSC toppers as well as senior faculty of IAS. Students across the valley participated in huge numbers and had a fruitful session. The students were given guidance about appearing in the civil services examination and the strategies for IAS examination. The workshop conducted a question and answer session where these aspirants got the chance to pose their questions and get their doubts cleared. All the three officers are here from three different departments. My question is that which department has most connection, social connection with the public? तो फर्स्ट 7 years नो डाउट सबसे ज़्यादा पब्लिक इंटरेक्शन जो है IAS की ही होती है बिकॉज ऑफ बीइंग इन द फील्ड. सेकेंड इज़ IPS टिल द प्रमोशन, जब वो SSP तक पहुंचता है. बियॉन्ड SSP DIG लेवल पे कोई पब्लिक ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं रहती है. और फिर थर्ड है इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, क्योंकि वो DFO रहता है, असिस्टेंट कंजर्वेटर रहता है, तो इस लेवल तक 14 साल तक उसका पब्लिक इंटरेक्शन रहता है. तो ये 3 सर्विसेज में पब्लिक इंटरेक्शन है. बट पब्लिक इंटरेक्शन जो है वो कोई प्रो नहीं है, बहुत कोई बड़ी हवा चीज़ नहीं है. इसमें प्रोज एंड कॉन्स दोनों है. ऑफिस का अपना ऑरा होता है, ठीक है. वहाँ पे आप सेक्रेटेरिएट में रहते हो तो सेक्रेटेरिएट में आप सेक्रेटरीज बाकी सारे बड़े बड़े डिग्निटरीज से मिलते हो. आपका जो एक्सपीरियंस होता है उस लेवल का पॉलिसी मेकिंग में वो अलग ही होता है, पब्लिक डीलिंग में अलग होता है. ऑफिस वर्क का अपना ऑरा है, अपने फ़ायदे हैं, पब्लिक डीलिंग के अपने फ़ायदे हैं. दोनों की अपनी है, दोनों को बैलेंस करना. तो सर्विस ऐसी होनी चाहिए जिसमें हल्का हल्का दोनों हो. Sir, my question goes to Najis Ansari, sir. My question goes to you that what must be my strategies, because I am at the young age. So how can I be motivated? How can I be consistent? And what must be my strategy from this age so that it will be very easier for me at my own time to crack the civil services? Thank you, sir. Thank you. See, first of all, it's good that you are thinking that you will go for the civil services. Yes, sir. See, my suggestion will be you're in 9th standard, right? Yes, sir. So first of all, get a graduation degree with good numbers. Okay, try to explore things. At this moment, I will not try to restrict you, to just go and to confine yourself. You have a lot of potential. So at this moment, work hard. Okay, get a graduation degree, and then you start your preparation. If you want to start your preparation in your last year, it's fine. Okay, it's good that you are motivated. Keep this motivation. Don't burn out. My suggestion will be don't burn out. See, I started when I was in my 3rd year because I had a 4-year degree, and then I keep going. After graduation, it took me 2 more years. So it will take time. Okay, so don't just burn out. My suggestion will be. Thank you. Sir, how to choose an optional subject? What is the strategy? Sir, I'm from BSc. I'm doing BSc right now. Chemistry, zoology, botany. जनरली लोग क्या है ना, एंथ्रोपोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, फ़िलासफ़ी, ये 4-5 सब्जेक्ट में से एक चूज़ कर लेते हैं. आप ऐसा करो, अगर आपकी लाइकिंग जो, मेरा पर्सनल ओपिनियन था कि मुझे पॉलिटिकल साइंस ही लेना है, तो मेरा पर्सनल चॉइस था वो, मैंने कुछ ज़्यादा जज नहीं किया. लेकिन आप ऐसा कर सकते हो, लास्ट ईयर के पेपर्स चेक कर लेना एक बार. Yes, sir. ठीक है. और एंथ्रो का थोड़ा क्रिस्प है सिलेबस. Sir, according to you, anthro will be a best option. थोड़ा सा ये है बायोलॉजी को लेके. Yes, sir. तो एवोल्यूशन थोड़ा ह्यूमन एनाटॉमी. Anthro will be a good option. Best, you have to take a call. I'll not judge. A good option. But yeah, it will be a better option. लेकिन आप दूसरे सब्जेक्ट्स को भी देख लेना, उनके लास्ट ईयर पेपर्स के ऊपर से जज कर लेना. जैसे मैंने सिविल इंजीनियरिंग नहीं लिया, मैंने पेपर देखा 3 घंटे का 4 घंटे में हो रहा था मेरे से, तो नहीं लिया. मैंने पॉलिटिकल साइंस ले लिया. आई कुड डू दैट बेटर. It is your call, but look into the last year papers. Thank you so much, sir. So many congratulations to all of you. My question is to Sir Ansari sir. Sir, you are a graduate from very prestigious college IIT Delhi, और obviously सब जानते हैं बहुत मेहनत लगती है किसी भी IIT के अंदर जाने के लिए.
एंड लकीली आई एम ऑल्सो सिविल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट, सो आई कैन रिलेट विद यू। सर मेरा सवाल ये है कि आफ्टर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम अ वेरी प्रेस्टिजियस कॉलेज IIT दिल्ली, तो जनरली क्या रहता है, जैसे हमारे बैचमेट्स हैं, कुछ लोग ग्रेजुएशन के बाद PSU ज्वाइन कर लेते हैं, सम गो इनटू गेट एग्जाम एंड देन MTech एंड पोस्ट ग्रेजुएट एवरीथिंग एटसेट्रा। सो मेरा ये सवाल है कि आपका मतलब इस चीज़ से, सिविल इंजीनियरिंग इज़ अ ब्यूटीफुल ब्रांच, एक बहुत ब्राइट करियर होता है इसमें, कैसे आपने मूव किया फ्रॉम वन फील्ड टू अनदर फील्ड एंड आफ्टर दैट ड्यूरिंग प्रिपरेशन टाइम, जैसे मतलब होता है कि बहुत सारी चीज़ें आती है, आपके बैचमेट्स कुछ लोग मतलब बहुत आगे गए होते हैं, कुछ लोगों ने MTech, तो अभी जो मेरे साथ है कुछ लोगों ने MTech ख़त्म किया, कुछ लोग तो PSU में है, और अभी हम जो है स्ट्रैटेजीज, मैं अभी स्ट्रैटेजी डिस्कस कर रही हूँ, तो हाउ टू गेट इनटू दैट, हाउ टू क्लियर, वो भी ऐसे एग्ज़ाम के लिए जिसकी जो चांसेस है सक्सेस के बहुत कम रहते हैं। सो मेरा आपसे ये सवाल है, कैसे ड्यूरिंग प्रिपरेशन टाइम स्पेशली इस चीज़ को कैसे डील करते हैं, ऐसी थाट्स को इन ऑर्डर टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस वगैरह। एंड सेकेंड थिंग, बीइंग ए सिविल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट, तो मैं आपसे आपका ये ऑप्शनल एक्सपीरियंस आप अगर आप शेयर करते, कैसे आपने वो चूज़ किया? थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल रिगार्डिंग ऑप्शनल जो उन्होंने पूछा, जो आपने ये पूछा, तो मेरा एंथ्रोपोलॉजी है ऑप्शनल, मैंने सिविल इंजीनियरिंग से नहीं लिखी है। ठीक है, रिगार्डिंग सिविल इंजीनियरिंग, हाँ बिल्कुल बात सही है, 19 से मैंने ग्रेजुएट किया और मैंने अराउंड 6 मंथ्स जो है नौकरी करी थी, वो भी एज ए बिजनेस एनालिस्ट। मैंने सिविल इंजीनियर के तौर पे नौकरी कभी नहीं करी। बिल्कुल आपके बैचमेट्स होंगे जो बहुत अलग अलग जगहों पे होंगे, कुछ PSUs में होंगे, कुछ लोग सिलेक्ट हो जाएंगे UPSC में भी। ठीक है, किसी ने मुझसे कहा था कि UPSC में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, जब तक आप सेलेक्ट नहीं होते, डिस्पाइट उस रात तक जिस दिन रिजल्ट आने वाली है, अगले दिन आपका नाम है उस लिस्ट में, जिस दिन आपका नाम आप देख नहीं लेते हो, आप जो हो एक नॉर्मल आदमी हो, और आपको हमेशा लगता है कि कल क्या होगा, अगर हम सेलेक्ट नहीं होंगे तो क्या होगा, तो वो चीज़ है, उसके साथ आपको रहना पड़ेगा, उसके साथ आप कुछ कर नहीं सकते उसका। आपको मोटिवेशन, जैसे इन्होंने कहा था कि इनर मोटिवेशन चाहिए आपको होल्ड करना पड़ेगा। बहुत सारा चीज़ जो है इसमें पेशेंस का है। महिबुल्ला भाई कह रहे थे कि उनका 6ठे अटैम्प्ट 5वें अटैम्प्ट, तो 5 अटैम्प्ट यानी 5 साल और 1 साल आप प्रिपरेशन का ले लीजिए, 6 साल आपको वेट करना पड़ेगा, आपको बिलीव होना चाहिए। मुझे किसी से कहा था कि आपको मालूम था कि आपका होगा, तो मैंने उसे कहा कि बिल्कुल मालूम था। मालूम इसलिए था कि नहीं भी होगा ना तो एक बड़ा एक्सपीरियंस होगा, और अगर हमको लगेगा कि मेरा नहीं होगा तो हम क्यों कर रहे हैं ये तैयारी, कोई मतलब तो है नहीं। हम इतना एनर्जी लगा रहे हैं, दुनिया चीज़ की प्रॉब्लम है, मेंटली आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हो, हर एग्ज़ाम के बाद आपको लगेगा कि यार ज़्यादा हो गया, तो आपको जो है हमेशा खुद को होल्ड करना पड़ता है। तो अगर आपको है कि हाँ हम तैयारी कर रहे हैं, तो आप मेंटली सोच के रखिए कि नहीं हम आखिरी दिन तक जाएंगे, क्योंकि इसमें लड़ना तो पड़ेगा आपको, आप बीच में छोड़ नहीं सकते। हाँ अगर आपको लगे कि नहीं कहीं और से मेरे बेटर अपॉर्चुनिटी है, मुझे लेना चाहिए, बिल्कुल जाइए। जो महिबुल्ला भाई ने कहा कि ये नहीं है कि हम इसमें अड़े रहेंगे, पर आपको जो है अपना फुल देना है, आप फुल दीजिए, सेटिस्फाई रहिए, दैट इज़ इनफ। और रही बात ऑप्शनल की, तो बाल भाई ने कहा जैसे ऑप्शनल में ना क्या है कि लोग एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहते, मेरा अप्रोच दूसरा है। मैंने 3 ऑप्शनल चेंज किए। मैंने पहले लिया था PSIR, जब मैं कॉलेज में था, मैंने PSIR की 2-3 किताबें पढ़ी, मुझे लगा कि यार PSIR ठीक है, अच्छा सब्जेक्ट है, पर मेरे लिए नहीं है शायद। फिर मैंने लिया उर्दू लिटरेचर मैंने पढ़ा, बहुत सारी किताबें पढ़ी, फिर मैंने चेंज किया उर्दू लिटरेचर से, और फिर मैंने लिया एंथ्रोपोलॉजी। और मैंने इंजीनियरिंग करी है, लेकिन मैंने बायो पढ़ी थी 12th क्लास तक, तो 12th क्लास तक मैं बायो पढ़ी थी, मैंने यूज़ किया वहाँ एंथ्रोपोलॉजी में, और वो मेरे लिए वर्क किया। तो अगर आपको ऑप्शन चूज़ करना है ना, तो अपने स्ट्रेंथ और अपने वीकनेस को अच्छे से पहचानिए और फिर एक ऑप्शन लीजिए और एक्सपेरिमेंट करिए। 2 किताबें पढ़ लेंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, तजुर्बा होगा, जहाँ तक साहब बोलते हैं। तो आप तजुर्बा लीजिए और एक अच्छा ऑप्शन चूज़ करिए और फिर फुल दीजिए अपना उस ऑप्शन को, तो आपको लगेगा कि नहीं मैंने जो है अच्छा किया है, दैट्स इट। मुझे ऐसा लगता था कि टेक्निकल सब्जेक्ट्स जो होते हैं उसमें रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा होता है। सिविल इंजीनियरिंग अच्छा है, बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो लिए हैं और जो एग्ज़ाम निकाले हैं, और मुझे पर्सनली ऐसा लगता था कि नहीं, मेरा जो रुझान है वो थोड़ा सोशोलॉजिकल ज़्यादा है, तो एक ऐसा सब्जेक्ट जो मुझे GS में हेल्प करे, ये भी एक एंगल होता है। बहुत सारे लोग PSIR इसलिए लेते हैं बिकॉज GS2 में हेल्प होता है, मुझे सोसाइटी में हेल्प होता था, तो आप वो सारे फैक्टर्स को भी आप रख सकते हैं अकाउंट में कि ठीक है मुझे देखिए एग्ज़ाम है ये, आपको इमोशनल नहीं होना है, आपको हमेशा प्रैग्मेटिक रहना है कि मुझे लिस्ट में नाम चाहिए। एक एम्बिशन है इसका, इस पूरे प्रोसेस का एक एम्बिशन है लिस्ट में नाम, बाकी सब चीज़ें फिजूल है। लोग इमोशनल हो जाते हैं, मुझे बहुत अच्छे से पढ़ना है, मुझे ये पढ़ना है, मुझे वो पढ़ना है, डजंट मैटर आप कितना पढ़ लोगे, लिस्ट में नाम नहीं है, नो बडी इज़ गोइंग टू एक्नॉलेज, वो मानेंगे तक नहीं, वो नहीं मानेंगे कि तुम कुछ पढ़े हो, आपका लिस्ट में नाम है, आप कुछ भी बोल दो।
तो इसलिए आपके पास स्ट्रैटी होनी चाहिए, स्ट्रैटी से आप सिलेक्ट करिए ऑप्शन को, ठीक है। थैंक यू। Iqbal sir, as you said, you had PSR as an option, as your optional. So I would like to know from you what was your strategy for your optional, sir? मैंने इग्नो की जो नोटबुक्स आती है ना, रेलेवेंट इग्नो की जो मास्टर्स की बुक्स आती है, बुकलेट्स, उनको पढ़ा था और मैम के नोट्स और उनको ना मैंने मिक्स करके अपने नोट्स बनाए थे। और फिर मैंने थोड़ा थोड़ा कुछ एरियाज है, जैसे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है, वो मैंने ओपी गॉबा है और एंड्रू हेवर्ड या बाकी सारी बुक्स हैं वो कम दिया है मैम ने। जो मैम ने कम कवर कराया है वो मैंने इंटरनेशनल बुक से पढ़ी है, लेकिन जो मैम ने सफिशिएंटली कवर करा है उसमें सिर्फ मैंने इग्नो ऐड किया था। मेरी पर्सनल स्ट्रेटजी थी और शॉर्ट नोट्स बनाना। और मैंने एक अच्छा चीज़ ये किया था, जैसे बुक लिस्ट बनाई थी अराउंड 150-100 बुक लिस्ट। मैंने बुक ऐसे पेज पे बुक एक कॉलम बियॉन्ड उसके समरी, तो 3 से 4 लाइंस में उसकी समरी बहुत छोटा छोटा लिख के, तो बुक और समरी उसकी जो है ना वो आप क्वेश्चन में आंसर में डाल देते हो तो आपको अच्छे नंबर देती है। आपका आंसर जो है ना रिच होना चाहिए। आप पूछ लिया है तो आपका कहानी नहीं पूछना चाहता है, आपका व्यू पॉइंट तो है, कॉन्टेक्स्ट आपको पहले लिखते हो, आंसर जो है उसका पहले कॉन्टेक्स्ट लिखते हैं, फिर हम क्या करते हैं उसमें डालते हैं इंटरनेशनल ऑथर्स हो या लोकल ऑथर्स हो, स्कॉलर्स हो, प्रोफेसर्स हो, उनका व्यू पॉइंट डालते हैं उसको सब्सटेंशिएट करने के लिए या उससे डिसएग्री करने के लिए, दोनों चीज़ों के लिए। तो उसके लिए आपके पास प्रॉपर डेटा होना चाहिए। तो मैंने वही से, जैसे कोट्स है, फेमस कोट्स का अलग से नोट्स बनाए थे, फेमस बुक्स के अलग से नोट्स बनाए थे, और जो जनरल नोट्स है उन दोनों का मिक्स भी बनाया था। तो थोड़ा सा हार्ड वर्क किया था, बट दैट पेज ऑफ। आई गॉट गुड मार्क्स इन पॉलिटिकल साइंस। बिल्कुल बिल्कुल जी। पार्ट 2 जो है ना, इट्स ऑल मोस्ट ऑफ इट इज़ डायनेमिक। तो मैंने ऐसे, माई पर्सनल स्ट्रेटजी वाज, मैंने जैसे इंडिया यूएस, मैंने इंडिया यूएस का बेसिक बैकग्राउंड बना दिया, एक पेज पर लिख दिया हिस्ट्री कैसी थी, कैसे रिलेशन रहे, फिर डिफेंस की क्या रिलेशन थी, तो डिफेंस के नीचे मैंने 8-10 लाइन्स रखी, अगर कुछ नया आया तो वो नीचे लिख दिया। अब इकोनॉमिक में मैंने जो लिखा हुआ है उसका कुछ नया आया तो नीचे लिख दिया। तो उससे क्या हो जाना, आपका जो पुराना भी है और नया भी है वो मिक्स हो जाता है। किसी स्कॉलर ने कुछ लिखा तो स्पेस रखना, इंडिया ईरान, इंडिया दिस, इंडिया दैट, तो उसके अकॉर्डिंगली आप अपने नोट्स बना लें। Thank you so much, sir.